Hallelujah. Hallelujah. Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। We welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से हम हर एक का स्वागत करते हैं। How great our God is. हमारा परमेश्वर कितना महान है। Hallelujah. Hallelujah. Praise Him. परमेश्वर की Praise the स्तुति Lord Almighty God. उनकी स्तुति हो। Hallelujah. Hallelujah. Lord, as we begin the service, परमेश्वर जैसे हम आज की सभा की शुरुआत करते हैं, Lord, it is your will, not our will, that we are coming in केवल your midst. आपकी नाम की महिमा आपकी योजना के अनुसार है प्रभु। We हम give you हमारी all योजना your glory and thanks for this. सारी महिमा और धन्यवाद हम उठाते हैं। As we begin the service, let us come prepared to worship the Lord in truth and in spirit. जैसे आज की सभा हम शुरुआत करते हैं प्रभु, हमें तैयार कीजिए ताकि आप और सच्चाई से आपको ढूंढे। Please do share this link to your families and friends so that they would be blessed. और ये लिंक को जरूर अपने प्रिय लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हर एक जन आशीष पाए। How many of us wants to go to heaven and see our loved ones not going? और हम में से कितने सारे लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे जो प्रिय लोग हैं वो नहीं जाए, ऐसा कोई है? Is there anyone? No, right? No. So we want everyone to come. हम चाहते हैं कि हर एक जन स्वर्ग जाए। So please do share this link to your families and friends so that they would be blessed. इसीलिए जरूर ये लिंक को जरूर शेयर कीजिए ताकि हर एक जन आशीष पाए। And a very warm welcome from the Heart of Christ Church. और हार्ट ऑफ क्राइस्ट की कलीसिया की ओर से हमारी का स्वागत करते हैं। We also welcome our church members in our midst. और जो कोई हमारी कलीसिया की सभा के सदस्य हैं उनको भी हम स्वागत करते हैं। Every seed you sow will be a fruit in the kingdom of हर God. एक बीज जो आप बोते हैं परमेश्वर की राज्य में वो जरूर फल पाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. As we begin the service, let us open our Bibles from the book of Revelations. हम जैसे आज की सभा की शुरुआत करते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब को हम खोलेंगे। The book of Revelations, chapter 3, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय beginning from verse 20 to 22. 20 से लेकर पढ़ेंगे। बाइबल की आखिरी किताब है प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय 20 से लेकर पढ़ेंगे। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। Hallelujah. Hallelujah. So as we read it in English, from verse 20. Behold, I stand at the door and knock. Anyone hears my voice and opens the door will come into him and dine with him and he with me. To him who overcomes, I will grant to sit with him on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, how many of us are ready to welcome our Lord in our hearts? कितने सारे लोग परमेश्वर की स्वागत करना चाहते हैं पूरे हृदय खोल के। As our word says that He comes at our doorstep, knocking, and those who hear Him will open up the door and enter into it. जैसे लिखा है कि परमेश्वर आगे खटखटाते हैं और जो जिसके पास कान है वो सुनकर द्वार को खोलते हैं। So, as we come together as a church, as a congregation, as Christ's body, we come here to open up our hearts so that He would enter into our lives. जैसे एक शरीर, एक कलीसिया, हर एक जन एक मन में आते हैं, हमारे हृदय को हम खोलते हैं ताकि हम परमेश्वर को स्वीकारें। How many of us have closed doors in our hearts? कितने सारे लोग के हृदय जो है बंद दरवाजा है। Anyone here? कोई है ऐसे? No, right? Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। You need to have an open door always. हमारे द्वार जो है वो खुले रखना चाहिए It's हमें। not the houses where we keep our doors locked in the night. हमारे घर ही केवल हम अपने दरवाजे को बंद नहीं रखते। We need to keep our hearts open all through the day and night. एक घर के जैसे नहीं, लेकिन हमारे हृदय को हमें पूरे हर पल खोल के रखना चाहिए। Are you one among them? क्या आप उनमें से एक हैं? Amen. Amen. Hallelujah. Come on, church. Let us reflect. Let us look up to the Lord. Seek Him diligently so that He would hear our prayers. आए परमेश्वर की ओर देखें और पूरी आत्मा से परमेश्वर को ढूंढें ताकि परमेश्वर हमारी आवाज को सुने।
Lord, we thank you for this time you have given us, Lord. परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सुंदर समय जो आपने दिया प्रभु। We thank you for assembling us together as one body in Christ. एक कलीसिया एक शरीर हो के आपने हम सबको इकट्ठा किया, इसलिए धन्यवाद। Lord, let your will be done in our lives, not our will. आपकी इच्छा पूरी होने दो प्रभु, हमारी इच्छा नहीं। Lord, we pray for all the church members who are right now and who are yet to come, Lord. Lord, you take total control in their lives. प्रभु हर एक कलीसिया के सदस्य जो आने वाले हैं और जो यहाँ मौजूद है, हर एक के जीवन में एक अद्भुत कार्य कीजिए। Lord, as your word says, these are the end times where we would witness pestilences, war and other pandemics across our nations. प्रभु जैसे हम जानते हैं ये अंतिम दिनों है जहाँ बहुत सारी महामारी, बहुत सारी ऐसी बीमारियां फैले हुए, बहुत सारी चीजें इर्द गिर्द में चल रहा है। Lord, forgive us for our sins. Forgive us for taking you casually anymore, Lord. प्रभु हमारे पापों को क्षमा कीजिए। ऐसे ही हम कैजुअली आपको हमने लिया है, उसके लिए हम क्षमा मांगता है। Lord, you prepare our hearts so that we would worship you in truth and in spirit. प्रभु हमारे हृदय को तैयार कीजिए ताकि हम आत्मा और सच्चाई से आपको ढूंढें। Lord, we pray for all the downtrodden, oh Father God, who are less privileged in this society. Lord, you take total control in their lives, Lord. अनेक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो बहुत ही गरीबी जीवन जी रहे, प्रभु उनके जीवन में एक अद्भुत कार्य कीजिए। Lord, we thank you for all the blessings you have blessed us so far. आपने हमें कितना आशीष किया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं And we प्रभु। thank you for the blessings which are going to bless us in the future, Lord. आने वाले दिनों में कैसे आशीष करने वाले हैं उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। Lord, we pray for the service, that this service will be a millions of blessings to any household in this world. प्रभु जो ये सभा जो है हर एक घरों में हजारों के लिए प्रभु एक आशीष बने, शब्द जाए। Lord, you will speak to them irrespective of whoever it might be, Lord. और जो कोई हो रहे प्रभु आप उनके जीवन में बात करने वाले हैं, Because you are our prayer answering God. क्योंकि आप प्रभु प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर उत्तर देने वाले हैं। And we thank you for choosing us rather than we choosing you, Lord. और प्रभु धन्यवाद करते कि आपने हमें चुना पहले, हम चुनने से पहले। How wonderful are you, Lord. कितने प्यारे हैं प्रभु। Yes, Lord, the potter who made the clay itself didn't choose the potter, but the potter has choose the clay. प्रभु हम मिट्टी है प्रभु, और आपने हमें रचाया है प्रभु। हमने आपके नहीं, लेकिन आपने हमें बनाया है। And you have made us according to your own image. How privileged are we, Lord. प्रभु आपके सम्मान आपने हमें बनाया है, इतने सौभाग्य बात है ये। And not only that, Lord, you have breathed through your nostrils the breath of life in our lives. और प्रभु आपने जीवन का सांस से हमें जीवन दिया। And we are here to glorify and to worship you, Lord. प्रभु आज भी हम मौजूद हैं आपकी आराधना करने। Lord, you speak to us through your word, Lord. वचन द्वारा हमसे बात कीजिए। Once again, we come to you at your presence to worship you, Lord. एक और बार हम आते हैं आपकी उपस्थिति में प्रभु आराधना करने। You take total control of our lives. पूरी तरह रीति से चलाइए। Those who have come empty-handed will be filled in the name of जो कोई Jesus. खाली हाथ आते हैं प्रभु वो भर के जाए यीशु के नाम से। They will not be filled by the worldly things, but they will be filled with the Spirit of the Lord. प्रभु इस दुनिया से भर के नहीं, लेकिन आपकी आत्मा से भर के वो जाए इस जगह से। Once again, we commit and we submit each and every one into your precious hands. यीशु के नाम से हर एक जन को हम आपके हाथों में समर्पित करते You हैं। take total control, आप Lord. पूरी रीति से We give you चलाइए। all the glory and honor. सारी स्तुति महिमा आपको In देते the हैं। name of Jesus, we humbly pray. यीशु के नाम से हम मांगते And we say aloud, Amen. हैं। आमेन। Hallelujah. How many of you are energized to worship the Lord? कई सारे लोग आज उत्साहित हैं परमेश्वर की उपस्थिति To में। be honest, I'm having goosebumps right now. और मैं पूरी तरह से उत्साहित हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आइए जोरदार ताली बजाकर हम यीशु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हमारा परमेश्वर महान है। और आज भी जैसे हम उनकी स्तुति आराधना करते हैं, ये खास दिन में परमेश्वर की उपस्थिति में आना, इससे बढ़कर और कोई बात है नहीं। आमेन। There is no greater joy than to come to God's presence. आइए ताली बजाकर उत्साह के साथ हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। महिमा महिमा हो तेरी
महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बांधता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांधता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरी बात जाने से, तेरी गाड़ी जाने से, मौत पर भी विजय है पाने से। आइए विश्वास के साथ हम गाएंगे। तेरी बात जाने से, तेरी गाड़ी जाने से, मौत पर भी विजय है पाने से। सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, आमेन। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु यीशु मेरी महिमा करता रहूं मैं सदा। यीशु यीशु मेरी महिमा करता रहूं मैं सदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। हालेलुया। जो ताली बजाकर हम यीशु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। वो महिमा के योग्य है। आमेन। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो महिमा के योग्य है। बाइबल में लिखा है वो सच्चा खुदा है। सभी कहेंगे वो सच्चा खुदा है। He is a truthful God. He is a God of truth. हालेलुया। सच्चाई का खुदा है। और जब हम उनको खोजते हैं सच्चाई के साथ, वो सच्चाई का खुदा हमारे बीच में कार्य करता है। हालेलुया। आमेन। आइए उत्साह के साथ ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। केवल महिमा हम उनको देंगे क्योंकि वो महिमा की योग्य है। हालेलुया। Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna.
पर हम यीशु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, जिंदा यीशु मसीह की। अपनी बाजू देखकर कहो यीशु आपसे प्रेम करते हैं। जीसस लव्स यू। हालेलुया। जीसस लव्स अस। आज हम जहाँ खड़े हैं, ये परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, इसलिए हम खड़े हैं आज। हालेलुया। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ आवर ओन मेरिट और बिकॉज ऑफ व्हाट वी डिड। हमने कुछ किया नहीं ऐसे कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करे। हम प्रभु को अपने दुनियादारी चीजों से इंप्रेस नहीं कर सकते। We cannot impress God with the worldly things that we have. हम प्रभु को मस्का भी नहीं लगा सकते क्योंकि वो सच्चाई का परमेश्वर है। पर परमेश्वर ने हम पर कृपा दिया, दया दिखाया और हमें उन्होंने बचाया। हालेलुया। सभी कहेंगे मैं आशीषित हूँ। I am blessed. We are blessed people. हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि पुराने नियम में परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। बहुत बार परमेश्वर ने लोगों से बात किया, अपने भविष्यवक्ता को भेज कर उन्होंने, बाइबल में लिखा गॉड सेज दैट डे एंड नाइट आई सेंट माय प्रॉफिट्स। मतलब दिन और रात भी मैंने अपने भविष्यवक्ता को भेजा ताकि वो बात करे मेरे लोगों से, पर उनके लोगों ने कभी उनका सुना नहीं। हालेलुया। जिस भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने भेजा उनको सच्चाई कहकर बचाने के लिए, उसी भविष्यवक्ता को भी वो लोग ने मारा, ठुकराया, नकारा और इंसल्ट किया। पर फिर भी अगर हम परमेश्वर की जगह में रहते तो हमें इतना क्रोध आता, गुस्सा आता, तो हम कहेंगे कि ये लोग बहुत कठोर दिल के हैं, पत्थर दिल के हैं, इनका तो हम कुछ नहीं कर सकते। यू नो, वी आवरसेल्व्स, हम अगर अपना ही कोई भाई बहन रिश्तेदार होने दो कुछ हमारे विरुद्ध में करते तो हम कभी उसको बैर नहीं कर पाते, इतना हमें भी इतना क्रोध आता है। पर परमेश्वर, बाइबल में लिखा कि कृपालु और दयालु है। ही इज ग्रेशियस एंड कंपैशनेट, स्लो टू एंगर एंड अबाउंडिंग इन लव। हम पुराने नियम में बहुत बार परमेश्वर का क्रोध को देखते हैं, पर बाइबल में लिखा है कि उनका जो मर्सी, करुणा, अनुग्रह है, उनका क्रोध से भी बढ़कर है। He relents from sending calamity. वो कभी नाश नहीं चाहते हैं, वो नाश नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम अंतकाल का जीवन पाए। हालेलुया। वो हमारे प्रति जो भी सोचता है अच्छा सोचता है। Whatever the thoughts that he thinks towards us, the Bible says he thinks good. सभी कहेंगे good, अच्छा, हालेलुया, भला भला सोच हमारे प्रति सोचता है। हम प्रभु के बारे में सोचते नहीं है, बट द बाइबल promises us, Jeremiah 29:11 says, I know the thoughts that I think towards you. मैं जानता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ तुम्हारे प्रति। हालेलुया, हालेलुया। यू नो, मेरे रूम की दीवार में मैंने वो वचन Jeremiah 29:11 को लिख के रखा है। Okay, it's there on the wall. You know, when I started writing that verse in big fonts, you know, I wrote it down. So that Lord, this is your promise. ये वचन सबको हमें पसंद है। You know, everybody knows Jeremiah 29:11 because हम बोलते हैं कि प्रभु आपका जो सोच है, विचार है मेरे प्रति अच्छा है, भविष्य है, आशा है। ये वचन लिखने के बाद एक दिन ऐसे हुआ था कि जैसे मैं बैठी थी, I wrote it just opposite my bed, so that whenever I get up, I just, you know, have to see that verse. मैं जानूं कि परमेश्वर में हमेशा हमारे बारे में सोचता है। And once कुछ ऐसे ही कुछ काम के टेंशन में कुछ बैठी थी, तभी तुरंत Lord, I don't know what to do, ऐसे मैं मेरे मुंह से जस्ट परमेश्वर मुझे नहीं पता, दिस मच ओनली, आई डोंट नो, मतलब ऐसे ही सोच में मैं जस्ट इतना ही बोल पाई कि आई डोंट नो। तुरंत मेरे आंखें सिर्फ वो शब्द आई नो एग्जैक्टली, यू नो, द होल वर्स, उस वो आई नो ऐसे उसमें से हाईलाइट होकर मेरे आंखों के सामने खड़ा था जैसा। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, लॉर्ड आई डोंट नो व्हाट। मैं आगे बोल भी नहीं, खत्म भी नहीं की, तब तक वो वचन ऐसे परमेश्वर का आई नो ऐसे एक, यू नो, बाहर ऐसे खड़ा जैसा, जस्ट दैट आई नो। तुम जाने कि ना जाने, मैं जानता हूँ। हालेलुया। ही इज द ग्रेट आई एम। वो कौन है? मैं जो हूँ सो हूँ, हमसे बढ़कर वो है। यहोशापात राजा कहता है, प्रभु हम नहीं जानते कि हमें क्या करना चाहिए, पर हमारी आंखें आपके ऊपर है। वी डोंट नो व्हाट टू डू, बट आवर आईज आर वेयर ऑन यू। परमेश्वर ने जो वादा किया कि मैं जानता हूँ तेरे प्रति मैं क्या सोचता हूँ, मेरे बारे में अभी मेरी बहन क्या सोचती है मैं कभी नहीं जान सकती, मेरे दोस्त क्या सोचते हैं हम कभी जान नहीं पाते हैं, पर गॉड सेज आई नो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ, और वो हमारे लिए काफी है। हालेलुया। एंड आई टेल यू समथिंग ब्यूटीफुल, इससे बढ़कर ये अच्छा है, सुंदर है कि प्रभु हमारे बारे में सोचता है। What he thinks, fine. We do not know what he thinks about us, but वो हमारे बारे में सोच रहा है ना, वो ही सबसे बड़ी बात है। He thinks about us. He says, I think about
for you. You know, that is the most beautiful thing. Hallelujah. और you know, यही सच्चा प्रेम है कि परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे वादा जो देता है वो पूरा भी करता है। हालेलुया। नए नियम में परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया और हमारे कठोर हृदय को छोड़कर, मतलब वो देखे बिना हमसे प्रेम करते अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया। हालेलुया। सभी कहेंगे थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु कि आप हमसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस दैट यू लव मी। थैंक यू डैडी दैट यू लव मी। धन्यवाद प्रभु कि आप हमसे प्रेम करते हैं। धन्यवाद कि आप हमारे प्रति सोचते हैं प्रभु। थैंक यू दैट यू थिंक ऑफ अस, यू आर माइंडफुल ऑफ अस, यू आर कंसर्न्ड अबाउट अस। Thank you, Lord Jesus, that this is the day you have made for us, Lord. Thank you, Father. Thank you that you know all things. You know all things. आप सब कुछ जानते हैं. The word of God says He knows all things. There's nothing hidden from His sight. उनके आंखों के सामने कुछ भी छिपा नहीं है. वो सब कुछ जानते हैं. आपके प्रति सब कुछ वो जानते हैं. वो सब कुछ जानते हैं. Be it your past, be it your present, be it your future, He knows. वो जानते हैं और उनका प्रेम आपके लिए सच्चा है. His love towards you is true. It's true. It's true love because He loves you. वो आपसे प्रेम करते हैं. वो आपका ख्याल रखते हैं. He's concerned about you. The word of God says, I will perfect that which concerns you. तुम्हारे जीवन का जो भी तुम सोचते हो जो पूरा होना है उसको सिद्ध करने वाला काम मेरा है. मैं तुम्हारे जीवन को सिद्ध करूंगा. ये परमेश्वर का वादा है. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू फादर. वचन कहता है कि आज भी अगर परमेश्वर तुमसे बात करता है तो अपना हृदय को कठोर मत करना. If even today the Lord talks to you, do not harden your hearts. Receive the word and say, thank you Lord that you love me. Thank you Lord that you have good plans for me. Thank you that I have a future and a hope. Thank you that you are mindful of me, Lord. Thank you that you will perfect everything that concerns me. धन्यवाद यीशु कि आप मेरे प्रति सोचते हैं और आपका सोच और विचार मेरे प्रति अच्छा है, भला है. धन्यवाद यीशु कि आपने मुझे एक भविष्य दिया है और एक आशा भी दिया है. सभी हाथ उठाकर कहेंगे धन्यवाद यीशु कि आपने मुझे एक भविष्य दिया है. कम से प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे एक भविष्य दिया है. धन्यवाद यीशु कि आपने मुझे एक आशा दिया है. You have given me a future. You have given me a hope. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Daddy. Thank you, Jesus. Thank you, Father, because you are a good God. आइए कलीसिया सभी आवाज उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद कहो. जो आशा, भविष्य, जो वादा परमेश्वर ने आपको दिया है, वो वादा को पूरा करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा है. धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया हालेलुया. जो भी हमारे जीवन धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद जो भी प्रभु हालेलुया हालेलुया योजना बनाया है उसको आज भी पहले से ऊपर धन्यवाद कैंसिल करके यीशु मसीह के नाम से कमान अपने हालेलुया जीवन के लिए प्रार्थना करो. जो भी शैतान ने हमारे जीवन में प्लान किया यीशु मसीह के नाम से उसको कैंसिल करके कमान इन द नेम ऑफ धन्यवाद इन द नेम ऑफ धन्यवाद इन द नेम ऑफ हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस. हालेलुया हालेलुया. धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु हालेलुया हालेलुया. थैंक यू फादर हालेलुया. धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु. आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी जयकार हो प्रभु. हालेलुया हालेलुया. थैंक यू फादर. थैंक यू आपकी दया के लिए धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु हालेलुया. आपकी करुणा के लिए धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु. आपके प्रेम के लिए धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया हालेलुया. धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु हालेलुया. थैंक यू फादर धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु हालेलुया 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 हालेलुया. थैंक यू फादर हालेलुया हालेलुया हालेलुया. धन्यवाद यीशु 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 धन्यवाद प्रभु पिता धन्यवाद प्रभु पिता
आपके प्रेम के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, कलीसिया होकर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति यहाँ पर है प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रभु, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु, हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आपसे प्रेम करते हैं यीशु पिता, हम आपसे प्रेम करते हैं यीशु पिता, हालेलुया, प्रभु अपना जीवन अपना भविष्य सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु पिता, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद यीशु पिता, आपकी महिमा हो प्रभु जी, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, हालेलुया, धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद यीशु पिता, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, इस नाम में चंगाई है, छुटकारा है, सामर्थ है, ये नाम एक साधारण नाम नहीं है, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी नेम दैट वी कॉल आउट, यीशु नाम में जीवन है, देयर इज लाइफ इन दिस नेम, हालेलुया, थैंक यू जीसस, जीसस, हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू मेरे पिता, थैंक यू मेरे प्रेमी पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हम हर एक को समर्पित प्रेम करते हैं, आप मेरे बारे में सोचते हैं, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु पिता, धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू हर दिन प्रभु जो आपने वचन से बात की है, हालेलुया, हम उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता, हम आपसे प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू, हालेलुया, धन्यवाद। जैसे हम आराधना करते हैं, बाइबल में लिखा है कि यीशु पतरस के पास जाकर कहता है, पीटर, son of Jonah, do you love me more than these? पतरस योना का से मैं नहीं पूछ रहा हूँ, तुम क्या मुझसे प्रेम करते हो? Do you love me more than the others, more than these? क्या तुम मुझसे दूसरों से बढ़कर प्रेम करते हो? पतरस कहता है, हाँ प्रभु। कहता कि प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, मैंने 3 बार आपको नकारा, पर फिर भी आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। You know that I love you. अपने हाथों को स्वर की ओर उठाइए और कहिए, प्रभु योग्य केवल तू है यीशु, यू आर वर्दी लॉर्ड फादर, हर महिमा के योग्य, हर महिमा के योग्य, हर आदर के योग्य, हर आदर के योग्य, धन्यवाद यीशु। योग्य केवल तू, अपनी आवाज को उठाएंगे, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा केवल आपकी हो, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र पवित्र केवल आप है यीशु, इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं आपके समान पवित्र परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा हमारे जीवन का दुर्धारी कीजिए। Let's all lift up our voice and sing. पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू,
केवल आपको महिमा योग्य आदर मिले यीशु। हमारी जीवन पूरी तरह से हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, क्योंकि पहले प्रेम आपने हमसे किया। हमने नहीं, लेकिन आपने हमें चुना, उसके लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और आपने हमें चुना, इसलिए आज हम आपकी आराधना कर रहे हैं। We praise you, Father. हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय जो आपने दिया आज हम सांस ले रहे हैं, उठकर आपकी महिमा कर रहे, वो आपकी कृपा, आपकी दया है यीशु। ये जानकर हम धन्यवाद करते हैं। आज से भी हमारी जीवन में आप एक अद्भुत कार्य करने वाले हैं, उसके लिए धन्यवाद। एक कलीसिया होके, एक मन में, एक शरीर होके हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। हार्ट ऑफ क्राइस्ट कलीसिया के हर एक सदस्य को हम आपके हाथों में देते हैं। और आज जो कोई ये ऑनलाइन को देख रहे हैं, हम मांगते हैं प्रभु हर एक जन आपको जाने और आपके करीब आए। जो वचन इस जगह से उठता है वो सफल भाई प्रभु, हर बीज जो हम बोते हैं वो दुगना आशीष लेकर आए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हर एक बीज को हम यीशु के नाम से रखते हैं। हर एक के जीवन में, हर परिस्थितियों में ये बीज काम करे यीशु। We give you all the glory, honor and praise, Daddy। जैसे हम वचन को भी सुनेंगे, हम मांगते हैं हमसे बात कीजिए। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में आपके वचन कार्य करे प्रभु। हर कठोर दिल को आप मांस बनाइए, ताकि आपके वचन जैसे है वैसे हम उसको अपनाएं यीशु। We give you all the glory, honor and praise। आने वाले दिनों में यही जगह में आके गवाही देने के लिए मदद कीजिए। आप ऐसे ही करेंगे, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह की पवित्र, अति पवित्र नाम से सुनकर कबूल कर हमारे स्वर्गीय जीवित पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। छोटा सा बच्चा भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। सभी बैठ जाएंगे। आप सबका स्वागत हम यीशु मसीह के नाम में करना चाहते हैं। आज भी इस सुंदर दिन परमेश्वर ने हमें उनकी उपस्थिति में लाया है, इसके लिए परमेश्वर का हम कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और उनकी योजना हमारे प्रति अच्छा है। आमेन। Even this day, this is the day that the Lord has made and the plans that the Lord has for us is good. हालेलुया। अभी जैसे पासवान हमारे बीच में वचन बांटेंगे, हम उत्साह के साथ रहेंगे, हम वचन सुनने के लिए तैयार रहेंगे। परमेश्वर हम सबसे बात करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बहुत महान है। प्रभु हम सबको ऊपर प्रेम करते परमेश्वर है। परमेश्वर की प्रशंसा हम सबको ऊपर खड़ा है। सब जन वाले ऊपर खड़ा हो जाएंगे, सब जन खड़ा हो जाएंगे। ये समय परमेश्वर चूरने के समय है। पवित्र आत्मा इस सब जगह मंडला रहा है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर यीशु मसीह आपको छूना जाता है, वो आपको टच करना चाहता है। अपने आप को हवाले कर लो। और ये लाभोशी खामोशी अपने आप को हवाले करो। हे मेरे प्रभु, मैं कुछ भी नहीं है प्रभु, मैं प्रभु, मैं अपने आप को हवाले करता प्रभु। सरेंडर माय सेल्फ। सबने पुकारो, सबने पुकारो, परमेश्वर पुकारो। हे मेरे प्रभु, मैं मेरे जीवन की सरेंडर करता हूँ, सरेंडर करता हूँ, अपने आप को हवाले करता हूँ। वही जगह में अपने सुरक्षित जगह, वही जगह हमारे छुपा हुआ जगह है, वही जगह हमारे उच्च स्थान है। वो परमेश्वर चट्टान है, वो परमेश्वर यीशु मसीह। तुम सबको ऊपर इतने प्रेम करने वाले परमेश्वर है। हम सबको ऊपर प्रेम करते हैं। वो अपने जीवन देके हमें बचा लिया परमेश्वर है। सब जन अपना अपना हवाले करो। और
ये जो देखने वाले मेरे भाई मेरे बहन मेरे बच्चों लोग आज जो परमेश्वर तुम्हारे से जो बात करता है तुम्हारे जीवन में नया उठाने का करता है प्रभु परमेश्वर तुम्हारे जीवन में नया काम करने जाता है प्रभु परमेश्वर तुम्हें छूना जाता है प्रभु अपने आप को हवाले कर ले तुम्हारे जीवन में जो भी नष्ट हो गया है तुम्हारे जीवन में सब कुछ निकल गया है इस आज परमेश्वर तुम्हारे साथ कहते हैं भाई तुम्हें वापस रीबिल्ड करेंगे वापस रिस्टोर करेंगे वापस तुम्हें बनाएंगे वापस तुम्हें आशीष करेंगे पूरी धन्यवाद यीशु हालेलुया धन्यवाद यीशु सब क्योंकि ये परमेश्वर एक जगह में भी आ गया है सबको ऊपर देख रहा है और मेरा बेटा मेरा बेटी कौन सी रीति से आया करके प्रभु के धन्यवाद करने के लिए हमें सब जन मिल के अपने आप को सबसे पहले हवाले कर लो सरेंडर कर लो एक बार नया चंगा अभी करने वाला परमेश्वर है तुम्हारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है सब जन अपने आप को हवाले कर लो रीला मोशी नंबर बड़ी कबा हालेलुया धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु प्रभु थैंक यू फादर धन्यवाद यीशु मैं कुछ भी नहीं प्रभु सब कुछ आप है प्रभु सब कुछ आप है अपना जीवन अपना सब कुछ प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूँ प्रभु करने वाले परमेश्वर मेरे हालात आपके सामने खड़ा रहने के हम कोई लायक नहीं है प्रभु इतनी महान परमेश्वर आपका से प्रभु आज प्रभु हम सब आपके सामने खड़े हैं प्रभु आपके सामने हम कभी नहीं खड़े अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे और परमेश्वर में समर्पित करता हूँ I surrender all Lord Jesus I surrender all Lord Father I वो खोल के कहेंगे I surrender all Jesus I surrender everything मैं समर्पित करता हूँ सब समर्पित करता हूँ आपके चरणों में समर्पित करता हूँ प्रभु I surrender all आप मेरे जीवन में आइए प्रभु मेरे जीवन में आइए प्रभु यीशु all to Jesus I surrender all to Him I freely give I will ever love and trust Him in His presence daily live I surrender truly know that thou art mine. Let's lift our voice. I surrender. I surrender. I surrender. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Let Thy blessing fall on me, Lord Jesus. Thank you, Jesus. All to Jesus I
love and power. Let thy blessings fall on me. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Let's all lift our voice. I surrender. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender परमेश्वर आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम जो आया है, जो देख रहा है, जो जीवन को अपने आप को जो हमने आपको बखर दिया प्रभु, अभी आप संभालिए, आप राज्य कर लीजिए, सबके जीवन में नया कार्य कर लीजिए, खुशियां दीजिए, आनंद दीजिए प्रभु। आने वाले दिनों में सबका जीवन में, एक एक व्यक्ति का जीवन में प्रभु नया कार्य कर लीजिए। जो सोचा नहीं होगा उससे अधिक काम करने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। What we have not thought to do something greater than that, our आप Father. कितने महान परमेश्वर हैं। You are a great God. आप चुपचाप करने वाला परमेश्वर You नहीं are है। a God who is not आप silent. देखने our वाला God. परमेश्वर You are a है। God who sees us. और Lord. आज जो आपके चरणों में अपने जीवन को समर्पण किया But whoever has submitted their lives, Lord, at your feet, सबका जीवन में आपने नया कार्य कर दिया, इसलिए आपको do धन्यवाद something. देते You हैं। have done something new already. We want to thank you, Lord. यीशु मसीह के नाम से मांगते In the हैं, name of Jesus, we pray. आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. सब बैठ जाइए। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। अपने माता पिता कोई भी वो एक लिमिट में प्रेम करने वाला है। And when our parents or father, mother, they love us, there is a limit to love. और आपका कोई फ्रेंड्स होंगे, एक लिमिट तक वो प्रेम करने Even if वाले your हैं। friends love you, there is a limit or a boundary for their love. लेकिन अपने परमेश्वर अपने एक ही लौटा पुत्र को हमें दिया, हमें बचाने के लिए जो दिया है, वो जो यीशु मसीह आपसे हमेशा हमेशा प्रेम करने वाला है। But the one, the Lord God who gave His only begotten Son for us, He is the one who loves you till eternity. तो अभी स्तुति आनंद करने के समय में परमेश्वर मेरे साथ जो कार्य किया है, वो मैं बोल नहीं सकता हूँ। And as we were worshipping, when I was recollecting what God has done for us, I cannot even express it in words. हम वचन में पढ़ेंगे यूहन्ना John chapter 21. We turn to the book of John, chapter 21. जो कहता था पतरस के बारे में परमेश्वर जो बात कर रहा था, And we spoke about Peter. पतरस के बारे में हर चीज परमेश्वर जानते हैं। And God is aware about everything regarding Peter. जो यूदास के बारे में भी परमेश्वर जानते हैं। And God is aware about Judas Iscariot also. परमेश्वर यूदास के बारे में वो जिंदा होने यीशु मसीह ने अपने उसके सामने बता रहा है, ये जो व्यक्ति रोटी लेने के समय में जो मैं किसका बस जो रोटी देगी वही मुझे पकड़वा देगा करके। And while Jesus was giving the bread, He says, whom I give this bread to, He's the one who's going to betray me. और जो पतरस के बाद जो बता रहा है, तुम 3 बार
तुमने मुझे इनकार करेंगे करके। And God speaks concerning Peter, saying that 3 times you will deny me. आज अपने आप को एक बार सर्च कर लो, हम भी कभी कभी परमेश्वर को इनकार कर दिया होगा। You also search your heart today, and have you denied the Lord Jesus? वो बता रहा है, परमेश्वर जो कहता है, ये योना का पुत्रा, तुम ये सबसे ज्यादा मेरे से प्रार्थना करते थे करके। And he says, Simon, son of Jonah, do you love me more than these? आज वर्शिप समय में परमेश्वर यही बात किया है, तुम कितने परमेश्वर से प्रेम करते हो। And even during worship, the Lord is questioning you today that how much do you love Him? सब जन जाता है, नाम से मसीह का नाम रखा है, कलीसिया जाता है, लेकिन तुम्हारा हृदय कितना दूर है परमेश्वर से। Everyone has Christian names, you come to the church, but your heart is so far away sometimes from Him. परमेश्वर को पता रहा है, पत्रोस से खुल्ला बात कर रहे हैं, तुम मुझे ये 3 बार इनकार करेंगे करके, लेकिन पत्रोस बोलते हैं नहीं, मैं कभी नहीं इनकार करूंगा करके बात किया है। And we see that Jesus openly tells Peter that you will deny me 3 times, and he says, no, I will not deny you. हम वचन में पढ़ेंगे, आज फैमिली ने वही बात जो परमेश्वर को जो प्रेम का बारे में आज शुरू किया है। And even we have spoken about the love of God. We began with the love of God. हम वचन 15 verse 15, John chapter 21 verse 15. So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than these? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lambs. 15. भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखते है? उसने उसे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। ये जो बात परमेश्वर दिखाता है, परमेश्वर का सेवक सीमोन के बारे में जो बात कर रहा है। And we speak here about Peter, the disciple of Jesus Christ, Simon. परमेश्वर कहते हैं जो कलीसिया को जो तुम संभालोगे क्या करके जो बात कर रहा है। And then he says that will you feed my sheep? He commands him to say, he says, feed my lambs. पत्रोस मच्छी पकड़ने वाला आदमी है। And we know that Peter was a fisherman. मच्छी कौन पकड़ता है? मतलब गरीब आदमी। He is one businessman who is not so high profession. वो परिवार खुद मच्छी पकड़ के बेचने वाले परिवार। And they are from a family that is catching fish and selling fish for a living. इसका मतलब एक सादा इंसान है। He's just an ordinary. When you consider and see, he's not in some great high level, but he's an ordinary person. वो कभी सोचा होंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ में संपत्ति करेंगे, यीशु मसीह के साथ में प्रेम करेंगे, यीशु मसीह के साथ में सेवा करेंगे, तो कभी सोचा होगा? Do you think that he would have ever thought that I will be with the Lord Jesus, I will serve along with the Lord Jesus, I will love the Lord Jesus? लेकिन उनका अंदर ही प्रेम था। But he had that love, fervent love inside of him. वो और पत्रोस और उनका भाई अंद्रेया, ये दोनों मच्छी पकड़ने वाले, लेकिन वो अपने जॉन बैप्टिस्ट का सेवक थे। Yes, we see that Peter and Andrew, both brothers, they were fishermen, but in spite of being fishermen, they were disciples of John the Baptist. वो अपने काम के बारे में जो काम करने समय में यूहन्ना का वचन के द्वारा यूहन्ना के पास आया, वो बैप्टिस्म लिया, उनके चेले बन गया है। And we see that though they were fishermen by profession, they came to John the Baptist, they heard the word that he had given, and they were baptized through him. मतलब इसमें से ये जो समझना है, जो यूहन्ना परमेश्वर को इतना प्रेम करके
परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करके यौवना के पास जो गया है, And we see that we can understand that these are people who really believed the word of God, and then they have gone to John the Baptist. तो उसकी बाद में यीशु मसीह के पास साथ में चला गया। And then they came and they started following Jesus. तो परमेश्वर ने उसने कितने ऊंचा स्थान में जो रखा है। And the Lord lifted them up to higher position. आज जो परमेश्वर उनको बता रहे, तुम मेरे कलीसिया, मेरा पेट पकड़ के तुम संभालेंगे करके पूछ रहा And then है। he's saying that take care of my lamb. He's lifted them up to this position to take care of the church. तो मैं मेरे जीवन में अभी मैं आ रहा है समय में, तो परमेश्वर मेरे से यही बात किया था, हम भी परमेश्वर से दूर था। And as we were worshiping, the Lord was speaking to me where we were, how far away from God. लेकिन उनके लिए उनका नाम भी मेरे ऊपर बहुत प्रेम मैं रखा था उनके लिए। And but I had that fervent love for him, for his name always. आज परमेश्वर मेरे साथ में यही बात किया, तुम मेरा कलीसिया को, मेरे बच्चों को संभालेंगे क्या करके। And then God has spoken to me saying that will you feed my lamb, will you take care of my children. वो तो यही बता रहा है, तुम सबसे ज्यादा मतलब जो 12 चेले लोग हैं, उनसे बोलते हैं सबसे ज्यादा, इन सबसे ज्यादा तुम मेरे प्रेम करते करके। And Jesus has 12 disciples, but he asks and questions them saying that more than these, do you love me more than these? वो बता रहा है, हाँ प्रभु, हम ये सबसे ज्यादा मैं प्रेम करता हूँ। He says, yes Lord, you know that I love you. आज ये सिर्फ सेवक के लिए बात नहीं कर रहे परमेश्वर। And this word is not just for the servants of God or the ones who are doing the आप ministry. सब उनका बेटा है, बेटी है। You all are sons and daughters of God. आपको बस यही परमेश्वर जो पूछ रहा है, ये मेरा बेटा, ये मेरे बेटी, तुम ये सबसे ज्यादा तुम मेरे से प्रेम करते हो। And God is questioning you also today saying that my son, my daughter, do you love me more than everybody else? हम कभी कभी अपने काम के बारे में प्रेम करते हैं, अपने कुछ और कुछ रिश्तेदार में प्रेम करते हैं। And many a times it so happens that we love the work that we do, we love our relatives, we love the friends that we have. और आप ये सोचते हैं अपने माता पिता को पूरा प्रेम करते हो, And you might think that I love my parents, my father, my mother. और आपको भाई बहन को ऊपर ज्यादा प्रेम करते हो, And you have love for your brother and your sister. और आप ये सोचेंगे मेरे सबको ये अच्छा इंसान है, मेरी मदद किया है, इसके लिए हम उनसे ज्यादा प्रेम करते करके। And you might think that though they have done good for me, they are favorable towards me, and so I also love them. लेकिन कोई भी इंसान आपको जीवन नहीं दे सकता है। But understand that how much of a love you can receive from someone in this world, no one can lay down their life for आज जो you. परमेश्वर जो एक कहता है, मेरा बेटा, मेरे बेटी, तुम दुनिया से सबसे ज्यादा मेरे से प्रेम करो। And today the Lord is talking to you saying that my beloved, my son, my daughter, love me more than this world. जो संसार में जो सबसे जो प्रेम करेंगे, लेकिन थोड़ा दिन प्रेम करेंगे, लेकिन कुछ भी छोटी छोटी कोई गलत बात आप कुछ सबसे बात किया तो वो आपको छोड़ देगा। And in this world we receive love for one another, but if at all there is something, some word that is displeasing to us, immediately that love dies away. आपका कोई भी फ्रेंड रहेंगे, एकदम क्लोज फ्रेंड रहेंगे, लेकिन वो आपके साथ बहुत अच्छी तरह बात करते होंगे, प्रेम से बात करते होंगे, लेकिन एक छोटी सी चीज में से अगर जो कुछ भी बात अगर थोड़ा बात उल्टा किया तो हे भाई तुम गलत आदमी है, हे फ्रेंड तुम बात सही नहीं है, तू गलत इंसान है, तो तुरंत आपको वही दिन से आपको नफरत करेंगे। You might have friends who are very close to you, they might be so loving to you, but suppose that one day you speak something that is displeasing to them, that's not acceptable to them, immediately they will say that, oh you are wrong, you are not a good person, this, that, and then immediately there's a cut off from that love and अब ये relationship. देख लीजिए, जो पतरस ने उनको इनकार किया, फिर भी परमेश्वर उनको वापस बुला रहा है। And we see that though Peter denied Jesus 3 times, Jesus calls Peter again. आज परमेश्वर तुमको बुला रहा है, तुम अगर दूर चला गया तो वापस परमेश्वर के पास आओ। Even today God is calling out to you saying that if you are far away from Him, come back to Him. तुम जो खोजा हुआ है वापस प्रभु देने वाला है। If you, whatever you have lost, you will receive it back again. हम वचन में पढ़े, कंटिन्यू करें। He said to him a second time, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, tend my sheep. उसने फिर दूसरी बार उसे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उसे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उसे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। सेकंड टाइम बात कर रहा है। Now this is the second time Jesus is talking to Peter. आज तुम्हारे पास यही बात कर रहा है, अगर तुम अपने जीवन को समर्थन कर दिया तो
परमेश्वर से हमें प्रेम करना है। And even now God speaks to you again a second time saying that you surrender your life to Him because He is talking to you. परमेश्वर से कैसे प्रेम करेंगे? And how are you going to love the Lord अभी Jesus? आप तो देख नहीं सकते, आप तो बात नहीं कर सकते, तो आप कैसा परमेश्वर से प्रेम You are not करेंगे? seeing Him face to face and talking to Him in such a way like as we communicated with men, but how are you going to show your love to Him? परमेश्वर से जो प्रेम करना है तो उनका आज्ञा पालन करना है। And if you say that you have to love the Lord, you have to obey His commandments. परमेश्वर से किस तरह जो प्रेम करना है, मतलब आप उनका वचन को, उनका आज्ञा पालन करने से उनसे प्रेम करने का When you मतलब obey and keep the commandments of the Lord, that is when you actually love the Lord. अभी जो सेकंड टाइम जो बात कर रहा है, आज तुम्हारे साथ यही बात कर रहा है। And again God is talking to you again saying that if you love me, you will obey my commandments. जो मेरे जो देखने में जो मेरा भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चों, आज परमेश्वर तुम्हारे से भी यही पूछ रहा है। Those watching us online also, my beloved, my sons, my daughters, God is talking to you the same thing. अगर आप उद्धार पाया होंगे तो If you have आपका received salvation, आपका माता, आपका पिता और आपका भाई, आपका बहन वो उद्धार पाया कि नहीं? you have received salvation, that is good. But has your mother, your father, your brother, your sister, have they also received the same salvation? आज योना से यही, सीमोन पत्रोस से वही परमेश्वर जो पूछ रहा है, मेरे पेड़ों को संभालो। And he says that Simon Peter, tend my sheep. जो किसको परमेश्वर ने जो अपने राज्य के लिए अपने दास को बुलाया है, वो अपने काम करेंगे। लेकिन आप अपने परिवार वाला है तो भी आपको क्या करना है? अपने परिवार के लिए, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनको बचाना है। And though the ministers of God, servants of God are saving the people of God and they are doing the ministry, feeding the sheep, tending the sheep, you as God's children have to save your own family also. You have to take the step of salvation for them आज also. परमेश्वर यही बोल रहा है, मेरा भेड़ बकरी की संभाल, मतलब जो तुम्हारा जो घर के अंदर जो है, जो संतान है, उनको तुम संभालना जरूरी है। And it's necessary you take care of those God has given in your life, your children. You have to see to it that they are tended by you. हमें सेल्फिश होता है कभी कभी, हम अपने आप को चलो ये मेरा भाई मेरे सुनता नहीं, मेरे बहन सुनता नहीं है, लेकिन आपको यही करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। And we see that so many a times you think my brother, my sister doesn't listen to me, and so it happens that you ignore it. But God wants you to pray for them. आप कौन है? आप राजाओं के राजा का पुत्र और पुत्री बन गए Who हैं। are you in identity? You are the son and daughter of God. वो जो योना का बस जो परमेश्वर जो बता रहा है, और एक बार बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वचन में जो पढ़ेंगे। And God talks to Simon saying that again in the third time. He said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. उसने तीसरी बार उसे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसे कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। Hallelujah. वो तीन बार बार पूछने से मुझे पतरस को पूरा ये बोले कि परमेश्वर क्यों मेरे को ऐसा पूछ रहे हैं? मैं आपसे कितनी प्रेम करने वाला है, कितने प्रेम करता, आप जानते हो, फिर भी आप जो पूछ रहे करके वो मांग रहा है। And we see that he is grieved in this way, means he's sorrowful that Jesus has questioned him the same question third time. जो फर्स्ट टाइम क्यों क्या बता रहे हैं? पेटों का मतलब बकरी का जो छोटी छोटी जो पेड़ों को, Lambs, it mentions about the lamb. First time when Jesus speaks, he says, feed my lambs. और वचन 15 वापस पढ़ेंगे, What's the end? The ending part. द लास्ट पार्ट। मेरे मेमनों को चरा। मेरे मेमनों मतलब जो छोटी छोटी जो पेड़ को। Hmm. और अभी जो सेकंड वचन में क्या बता रहा है? Tend my sheep. तो मेरा शेप मतलब जो मेरा Bed. मेरी भेड़ों की रखवाली कर। रखवाली कर. संभालना है। और तीसरे टाइम में क्या बता रहा He है? says, feed my sheep. मतलब भेड़ों को चरा। चला। ये जो है आज सिर्फ पासवान का काम नहीं है। पासवान जो है वचन सिखाएंगे, संभालना है, रास्ता दिखाएंगे। And
The ministry of the pastor, of course, it is that he shows the way, he shares the word of God, and he tells you what you're supposed to do. आज आप क्या करना है मेरे प्रियो, आपके परिवार को भी संभालना जरूरी है। And my beloved, you have to also take the responsibility of taking care of your family. क्योंकि जो परमेश्वर पत्रोस के ऊपर जो प्रेम करते हैं, क्योंकि वो इनकार किया, फिर भी परमेश्वर ने उनके साथ प्रेम जो And we करा see that though Peter denied him, still Jesus loves him. और हम कौन है? हम उस लायक है कि उनके सामने पड़ा रहने के लिए, उनके सामने बैठने के लिए और उनके साथ में भोजन करने के लिए। Are we even worthy to sit and speak to the Lord, or even sit and eat along with him? हम वचन में पढ़ेंगे पहला क्रॉनिकल चैप्टर 17, पहला इतिहास 17 अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 17 verse 16. Then King David went in and sat before the Lord and said, Who am I, O Lord God, and what is my house that you have brought me this far? तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। एक आज दाऊद राजा बन गया है और वो जो पेट बकरी संभालने वाला एक छोटा लड़का था। And we see that David, who is now a king, he was a shepherd boy who was taking care of the sheep. और उनका डैडी दूसरा बेटों को सबको आगे खड़ा किया था। तभी शामूल आया उनको आशीष करने के लिए, अभिषेक करने के लिए, और दाऊद के बारे में कोई सोचा भी नहीं, कोई याद भी नहीं किया। And we see that when Samuel the prophet came to anoint David into that family, we see that the father Jesse did not even consider David to come and stand there. ये जो परमेश्वर दाऊद जो कहते हैं, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, He says, Who am I, O सब जन Lord? बोलेंगे मैं क्या हूँ। मैं क्या हूँ? What am I? Who am I? और वन सेकेंड मैं मैं क्या क्या हूँ, आगे, मेरा घराना क्या है कम ऑन, मेरा मेरा घराना घराना क्या है आगे, कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। परमेश्वर के जगह में आपके लिए क्या आया है। प्रभु की ताली बजा के धन्यवाद करेंगे। आमीन। आपके जगह में लिख के आया है, तो वही परमेश्वर जो कहता है, दाऊद बोलता है, दाऊद का बस याद ही नहीं किया उनके पिता ने, और परमेश्वर ने अपने सेवक को याद दिलाया, वो उनको अभिषेक किया है और दाऊद राजा बन गया है और राजा बता रहा है मैं, मेरा घराना क्या है। And we see that David, who was not even considered to be standing there to be anointed that day, and today now he comes being a king. After being promoted, he says that who am I and what is my और house? परमेश्वर महान है, आप सबको प्रेम करने वाले हैं। आज से नया कार्य आपके जीवन में करने My वाला beloved, है। God loves you. Even today, He's going to do a new work in your life. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, सबसे बोले हालेलुया। Hallelujah. और यही परमेश्वर का सामर्थ हम सबको पर आज उतरा है And- और वो जिनको भी छू लिया है। God's power has descended upon us. He has touched many of us today. हमें ये दो चीज करना है अपने जीवन में। परमेश्वर चंगाई करने के बाद हम क्या करते हैं, कभी कभी हम भूल जाते हैं। Many a times when we receive a blessing or a healing from God, we forget Him. हम रोते हैं, मेरे परमेश्वर मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मैं बहुत तकलीफ में, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य करने के बाद याद भी नहीं करता है। Many a times we cry to the Lord, do this for me, do that for me. But when He's done the work for you, you tend to forget Him. आपको हर पल याद रखना है। You have to remind yourself always अब देख about लो, ये it. राजा होने के बाद अपने पुराने जीवन में वो रिमाइंड करता है, हे प्रभु मैं किस तरफ था, मैं एक छोटा लड़का था, मेरा पिताजी मेरा याद भी नहीं किया, लेकिन आपने मुझे याद दिला के मेरा राजा बना दिया। आज मैं क्या है करके, मतलब मैं कुछ भी लायक नहीं था, लेकिन आपने लायक किया है। And he's reminding himself about all his past, that he was just a shepherd boy, but after that God has elevated him. Today he remembers and says, Lord, who am I and what is my house? You are the one who has Hallelujah. brought me this far. हालेलुया। Hallelujah. आज प्रभु आपकी जगह में लेके आए, आज के दिन नया कार्य आपके जीवन में कर रहा है। And God has gathered you this day. God is going to do a new work in your life. तो उसमें हमें क्या करना है मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करना है, Start speaking about the kingdom of God. धन्यवाद करते रहना है, Be thankful to the Lord और कभी भी हम परमेश्वर को बोलना नहीं। and never forget
all the things that He's done तो for you. हर पल परमेश्वर को याद करने के समय में परमेश्वर भी तुम्हारा याद करते When रहेंगे। you keep remembering the Lord, He will always remember you. वचन में ये जो लिखा है, परमेश्वर का वचन को तुम हमेशा याद रखना है। And the Word of God says, meditate or remember the Word of God always. और उसमें वचन में यही लिखा है, अगर तुम मेरा वचन को भूल जाएंगे तो मैं तुम्हें भी भूल जाएंगे। And there is a word in the Bible that says that if you forget me, I will also forget you. और तुम्हारे संतान को भी भूल जाएंगे। And I'll forget your descendants after you. कितनी बड़ी बात है। It's a very tough verse. अब ये मसीह का जीवन का एक आसान नहीं समझना Do है। not consider this Christian life a very ordinary thing. बहुत जन यही समझते हैं, लेकिन हम भूल जाता है। लेकिन मेरे प्रभु आज ये तुम्हारे से याद दिलाता है, हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, हर पल उन्हें याद रखना My है। beloved, many people forget, but even today God is reminding us, do not forget what the Lord has done for you. मेरा जीवन में एक अधिक कार्य किया था। In my life, personal life, God has done great things for आज me. जो दाऊद को किस तरह जो परमेश्वर ने जो सहायक किया, उस तरह से मेरे पर्सनल जीवन में भी काफी किया है। And just as how God has blessed David, in similar manner, God has blessed personally me also. तो आप सोचेंगे भी नहीं, उससे ज्यादा मुझे परमेश्वर ने किया है। And more than you think, also God has done good things for me. हम आपको बताने थे तो मेरा टेस्टिमनी काफी ज्यादा है। And when I start testifying, there's so much to testify about. लेकिन मेरे प्रियो, आज परमेश्वर तुम्हारे से भी कहता है, तुम्हारे जीवन में भी ऊंचा स्थान में प्रभु लेके आने वाला And my है। beloved, God is talking to you today also that He will elevate you. हमें क्या करना है? And what we have to do is, पहला इतिहास 16 अध्याय 23 वचन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 16 वर्स 23। sing to the Lord, all the earth, proclaim the good news of His salvation from day to day. हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके लिए उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। हालेलुया। हालेलुया। आज हम उद्धार पाया है, परमेश्वर का अभिषेक पाया है, हम परमेश्वर के लोग बन गया है। And we have received salvation, we have received His anointing, and we have become people of God. उसके लिए परमेश्वर की एक बार ताली बजा के जोर से ताली बजा के जोर से तो हमें क्या करना है? हर दिन अपनी जो सल्वेशन, अपनी जो उद्धार परमेश्वर हमें बचाया है, तो इसके बारे में बात करना And है। it says you have to proclaim the good news of His salvation every day, each day. आप ये सोचेंगे परमेश्वर ने मेरे जीवन में कुछ भी नहीं किया है। And if at all you are saying, oh, God has not done anything for me. ना ना ना, परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में कार्य किया होगा। My beloved, God has done something for you surely. हम कभी कभी भूल जाते हैं। Many times we forget what He बहुत has चीज done. किया होगी He's surely done many things for और you. परमेश्वर अच्छा कार्य किया And He होगी। does good things for you. आप एक बार याद करके देख लो, आप एक टाइम में क्या था और अभी क्या है, करके आप एक बार याद Just sit करो। and think that what you were before and who you are now. हो सकता है क्योंकि आपको गलती की वजह से सब कुछ हो गया Many होगा। a times because of our shortcomings and wrongdoings we fall or falter. परमेश्वर तुम्हारे हाथ में कुछ दिया होगा, कुछ न कुछ He may ब्लेसिंग दिया have given you होगा, some blessing in your hand उसको हमें संभाला नहीं है। and we did not take care of it or preserve अगर it. हम संभाले नहीं तो वो निकल जाएगा। And many times when we do not take care of the blessing, we lose it. जो कल जो एक अपने कलिसिया का जो बेटे का शादी था, शादी में हम जो गया था, And yesterday as our brother's wedding was there, तो उसमें जो परमेश्वर यही बात किया था, हम पति और पत्नी एक बन जाता है, we see that yesterday we spoke that husband and wife become one. लेकिन उसके वो दोनों जन कुछ भी चीज नहीं कर सकता है। But two of them alone cannot handle everything. अगर वो तीसरा जो है परमेश्वर यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में आने के बाद सब कुछ तुम कर सकते And when हैं। you have the Lord Jesus as the third person, then everything is possible. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में आने के बाद सब कुछ कर सकता And है। when Jesus walks into your life, all things are possible for you. और ये उनके जीवन में नहीं, तुम्हारे जीवन में भी करने It's वाला not है। just for them, it's over each and every one of you. सबसे पहले तुम्हें विश्वास चाहिए। First, you need faith. तुम सोचेंगे मेरे बारे में क्या परमेश्वर ने जो किया है, And you might think that what is so great about me that God has done for me? तुम्हारे जीवन में बड़ी कार्य रखा होगा। There is some good plan for you. तुम्हारे बच्चे के लिए बड़ा कार्य रखा होगा। For your children, God has good plans for them. तुम सोचेंगे भी नहीं मेरा परमेश्वर क्या किस तरह से आशीष करने वाला है। And you cannot even think and recollect it how and what way God can bless you. आमीन। Amen. मेरे जीवन में पर्सनली जो बहुत ज्यादा परमेश्वर का दास लोग मुझे भविष्यवाणी किया था, In my life also personally, many men of God have prophesied over my life. और हर चीज होते रहता है। And I'm sure everything takes place. हालेलुया। Hallelujah. और जो मैं मांगा इतना, लेकिन परमेश्वर दिया इतना। I asked very little, but God has given me more. हालेलुया। Hallelujah. एक चीज के लिए नहीं है मेरे प्रियो, परमेश्वर को बस हमें हमेशा प्रेम करना है। My beloved, just not this one
I'm saying love the Lord always. आज हम शुरुआत अभी जो प्रार्थना किया था संडे शुरू करने के समय में जो आराधना किया अपने जीवन को सरेंडर करने की। And you have to surrender yourself. आपने जो देखने वाले मेरा भाई मेरा बहन मेरे बच्चों लोग आज अगर रियली आपके जीवन सरेंडर किए तो आज से तुम देखो तुम्हारे जीवन में कितना महान कार्य And करने if वाला today है। truly if you surrender your life, you see what great mighty things God और can ये do for वचन you. में जो लिखा है जो हमारे जीवन में क्या क्या परमेश्वर जो किया है दूसरे की सुनाना है। And it says that you go and proclaim the good news of His salvation from day to day. Verse 24 Declare His glory among the nations, His wonders among all peoples. अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। Hallelujah. आमीन। क्या करना है? अन्य जातियों में उसकी महिमा का, देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कार्य किया है उसके बारे में दूसरे के सुनो। And it says that you go and declare the glory of the Lord, the great things that God has done and wonders He's done among you. Go and declare it. अब तो सबसे पहले कैसे करना? मैं पहले अंधेरे में थे, You have to declare it, saying, "I was in darkness, परमेश्वर ने मुझे रोशनी में लाया है। and God has brought me into the तो light. यही बताना है, मैं पहले अविश्वासी थे, I was an unbeliever, परमेश्वर ने मुझे विश्वासी बना दिया। and now I am a believer. मैं पहले मैं और कुछ किसी का बेटा था, शैतान का बेटा था, I was the son of the devil before, और अभी मैं परमेश्वर का बेटा बन गया but है। now I am the son of God. परमेश्वर का बेटी बन गया है। I am a daughter of God. हालेलुया। Hallelujah. अभी आप बताओ परमेश्वर का बेटा बनने के लिए आपने क्या दिया है? And now to be called the son of God, what have you done? आपको सुनने के लिए अच्छा लग रहा है। एक परमेश्वर राजा है, राजा का बेटा बनने के लिए आप क्या है? Who are you? To hear such a thing, it sounds so good that we are sons of God. But to get that position, what have you done or who are you? What is your identity? और उनका बेटी बनना मतलब राजा का बेटी क्यों? प्रिंसेस। तुम प्रिंसेस कैसे बने? मतलब तुम्हारा चेहरा क्या है? तुम क्या है? तुम कौन सी खानदान का है? मतलब एक प्रिंसेस मतलब जो God is giving you that particular position as the son and daughter of God. What is that quality or greatness in you that you can say that I am in such a big position? एक राजकुमार और राजकुमारी मतलब ये कितनी बड़ी बात है। It's such a big position that God is granting to ये you. मजाक का बात नहीं मेरे प्रिय, ये सच बात है। परमेश्वर यही कहता है उनको ऊपर जो भी व्यक्ति विश्वास करेंगे वो अपना बेटा बनाएगा, बेटी बनाएगा। इसका मतलब हम राजाओं का राजा सुधि करने वाले परमेश्वर का बेटा बेटी। And the word of God clearly says that when we believe in the Lord Jesus, we are called children of God, sons and daughters of God, and you have the authority and you're the children of the King of Kings. उन्होंने अपने लहू बहा के हमें बचा लिया, इसके लिए उसकी एक बार जोर से ताली बजा के He's shed धन्यवाद। his blood and saved us all. Let's give a clap offering and thank the Lord. Amen. आमीन आमीन। इसके बारे में भी क्या करना है? परमेश्वर का तुम्हारे जीवन में जो कार्य किया है हमें एक दूसरे को बताना है। ये मेरे परमेश्वर इस तरफ मेरे जीवन में कार्य आ रहा है, तुम्हारे जीवन में भी कार्य करेंगे। You have to proclaim and declare the good news and the glory of God and the good things that God has done for you so that they also will know. हम इसलिए क्या करना पड़ेगा? हम जॉन चैप्टर 5 वर्स 38 यूहन्ना 5वां अध्याय 38 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना चैप्टर 8 वर्स 38। जॉन But you do not 32 sir. John chapter 8 verse 32. 32. and you shall know the truth and the truth shall set you free. तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। Hallelujah. अभी आप शैतान क्या करता है? सुनो, शैतान ऐसा किसी को ऐसा पकड़ने वाला नहीं है। When we think about Satan, he's not just coming and just catching hold of somebody just like that. आप उनको पकड़ने के लिए उनके चाल में आप जाते हो। What you do is you fall into his traps. अभी समझो शैतान ने कुछ चाल डाल कर रखा, मतलब कुछ नेट डाल कर रखा है, Just imagine that he's laid down a net to catch hold of you. तो आप कूद उधर जाके गिर जाते हैं, And many times we ourselves walk into that trap. तो वो पकड़ेगा। Surely you will be caught. तो आप मौका दे रहा है, इसके कारण वो आपको पकड़ता है। And it says that you are giving him a foothold, you are giving him a chance, and that's the reason he is catching hold of you. इसीलिए ये वचन में जो लिखा है, तुम किसी का गुलाम ही नहीं है। परमेश्वर जो कहता है, तुम आज
आजादी हो गया है। And you are no longer a slave. The Bible says that you have known the truth, so you have been set free. तो अगर जो फ्री आपको छुटकारा हो रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है? परमेश्वर के वचन को सुनना है। And in order, as you believe the truth, listen to the word of God. और जो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, हमें पढ़ के हमें उसका आज्ञा पालन करना है। And when what is written and mentioned in the word of God, you have to listen, read, and obey it. तो परमेश्वर जो कहता है तुम्हें छुटकारा देने के लिए, तुम्हारे जीवन में आशीष देने के लिए मैं तैयार है, लेकिन तुम्हें भी कोई काम करना पड़ेगा। And I am willing to bless you. I am willing to give you what you need, but you also have to do your part. तो परमेश्वर तुमको आशीष करने वाला है, तुम्हारा प्रार्थना सुनने वाला है। And God will listen to you. He will answer your prayer. तो हमें क्या करना है? उनके जो पसंद है वो हमें काम करना है। And in order for that to happen, do things that pleases God. उनके अपने जीवन में जो परमेश्वर को जो ना पसंद है, वो सब हमें भी ना Whatever is unnecessary, what God does not like or is displeased with, let it go from your life. आपको इस तरफ निर्णय लेना है, ये मेरे परमेश्वर को ये काम पसंद नहीं है, तो मुझे भी ये पसंद नहीं है। You must take a decision that if God does not like it, I also do not like it. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अगर आप इस तरफ डिसीजन लेने के समय में, तुम परमेश्वर ये जो कहता है, दूसरे वचन में जो क्या लिखा था, उसने ये कहता है तुम मेरा वचन को भूल जाएंगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे संतान को भी भूल जाएंगे। तो मतलब संतान को भूल गए तो क्या होता है? शैतान, क्योंकि परमेश्वर तुमको रखवाले रखा है, तुमको चारों तरफ से प्रोटेक्शन रखा है, वो प्रोटेक्शन निकल गया तो शैतान तुम्हें पकड़ेंगे। And when you forget the Lord or you forget His ways, Bible says that He will forget you and your children, which means that you get into the trap of Satan. You get out of the security that God grants to you. हालेलुया। हमें इसके कारण क्या करना है? परमेश्वर का वचन को सुनना है। कभी भी परमेश्वर के वचन को हम नखरा नहीं करना है। Do not deny the word of God. Listen to the word of God. ये परमेश्वर के वचन में जीवन है। Remember, life is there in this अब word. याद रखना है, परमेश्वर का वचन सिर्फ ये कागज नहीं है, ये जीवन का किताब है। Do not just consider this book as with papers, but it has life. आप ये सोचेंगे ये तो खाली पेपर में जो लिखा है, ये किताब नहीं है, ये पवित्र आत्मा लिखा हुआ है, वचन है। This is just not any ordinary book. It is the word of God written by the Holy Spirit. इसमें सब जन अपने अपने बाइबल उठा के बताइए, बाइबल उठा के बताइए, ये इसमें जीवन है। Lift your Bible and say, इसमें जीवन ये है. जीवन है। There is life in और this. ये जीवन मेरा अंदर आ जाएगा। And this life will reside inside of you. हालेलुया। ताली बजाके प्रभु धन्यवाद मत करेंगे। क्या जी तो इसी कारण आगे जो पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। 33 They answered him, "We are Abraham's descendants and have never been in bondage to anyone. How can you say you will be made free?" Jesus answered them, "Most assuredly I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. And a slave does not abide in the house forever, but a son abides forever. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed." उन्होंने उसको उत्तर दिया, तुम तो इब्राहिम के वंश से हो और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? अब ये बताइए, हम कभी हम मसीह का परिवार में जन्म हो गया होंगे? We may have been born in a Christian family. वचन में, बाइबल में किधर भी लिखा नहीं है तुम परिवार में जन्म हो गए इसके लिए मैं तुमको स्वर्ग राज्य में लेके जाएंगे। The Bible never mentions that because you are born in a Christian family, you are going to heaven. No, it's not mentioned. और नहीं तो हो सकता है आपका नाम एकदम अच्छा मसीह का नाम लिखा होंगे, तो आप सोचेंगे मेरा नाम मसीह का नाम लिखा है तो मैं परमेश्वर के पास जाएंगे। And you might have a nice Christian name or a biblical name, and you might say that because I have the name, I will go to heaven. ये जो बता रहा है परमेश्वर बता, तुम अब्राहम की संतति, मतलब जो इतनी बड़ा ऊंचा परमेश्वर का दास है, उनका संतान करके तुम बोल गया तो भी परमेश्वर नहीं लेंगे। And here they boast about saying that we are descendants of Abraham, but for God that also does not matter that if they are in such a line. आपको पहले मैं बताया, पहले मैं शैतान का बच्चा था। We were children of Satan before. आप ये सोचेंगे पास्टर ऐसा कैसे बात करता है, हम शैतान का बच्चा है। And how can you say that we were children of Satan before? वचन में लिखा है जो पाप करता है वो शैतान का संतान है। And the word of God says that those who are in sin, they are children of the devil. हम एक टाइम में शैतान का संतान बन गया था। There was a time when we were children of लेकिन Satan. परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की कृपा से हम आशीष बन गए, उनके बेटा बेटी बन गया। And because of the grace of God, today we have received salvation and we are children of the Most High और ये God. जो इसमें जो लिखा है, जो पाप verse 34 में जो क्लियरली लिखा यीशु है, ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। अभी आप ये देख लीजिए, कोई भी पाप किया तो
आप कभी भी यही सोच के देख लो, कोई पाप किया तो वो कभी भी आपको वो पाप के बारे में याद रहेंगे। When you commit some kind of sin, that sin will always be remembered by you. उसी में से बाहर आने के लिए मौका नहीं You देंगे। become a slave and you're not able to come out of it. आपके लिए अभी चलो मैं पापी था, मैं सिर्फ काम किया, अगर मुझे बाहर आना है तो आप अपने आप को आप मतलब बाहर नहीं आ सकते। And suppose that you remember, oh, I have done such a sin, I want to come out of it. You cannot deliver yourself. आपका हाथों पैर को जंजीर से बांध के जो रखा है, उसी में से तोड़ने के बाद ही आप आजादी हो And जाएगा। that bondage, that chains that have bound you because of sin, when they are broken, that's when you can be released. अगर शैतान अपने जंजीर से बांध के रखे तो उसमें से आप अपने आप को ताकत से तोड़ के बाहर नहीं आ If Satan सकेंगे। has bound you in sin, those chains cannot be broken by yourself. तो उसी में से तोड़ने के लिए परमेश्वर का आत्मा तुम्हें चाहिए, And for you to be set free, you need the Holy Spirit of God. परमेश्वर यीशु मसीह तुम्हें You चाहिए, need the Son to set you जो free, पापों से छुड़ाने के लिए, to be delivered from sin, श्रापों से छुड़ाने के लिए, to be delivered from curses, अधर्मों से छुड़ाने के लिए। to deliver you from transgressions. हमारा परमेश्वर तुम्हारे हमारे पापों को सब उठा के क्रूस में हमें सबको आजादी दे दी है। And we see that Jesus carried all of these on the cross and He has set us free. और वही तो परमेश्वर जो बता रहा है आगे वचन में जो लिखा है 35-36. 36 पढ़ेंगे। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर यही कहता है, हम सबको परमेश्वर ने सरेंडर कर दिया, आजादी दिया, उसके लिए ताली बजा के प्रभु के एक And the word of God says that we have been set free by the थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अगर कोई आजादी नहीं दिए तो हम कहाँ जाएंगे? दादा Where would we go if we were not set free? Hell. हमें बचा लिया है ना? He has saved us. बगल वाले के Hallelujah. बोलो, यीशु ने तुम्हें बचा लिया है। Come on, look at the person next to you and say, Jesus has saved you. हालेलुया। Hallelujah. यीशु ने तुम्हें बचा लिया, इसलिए तुम आज उनका बेटा बन गया, बेटी बन गया। आज ये जगह में परमेश्वर तुम्हें And लेके आया है। because He has delivered you, you have become the son and daughter of God, and He has brought you into this place today. मेरे प्रियो, आज परमेश्वर जो कहता है मुझे प्रेम करो करके परमेश्वर And today कहता God है। is telling you, my beloved, love Him. और परमेश्वर तुम्हें आशा दे रहा है, And He is giving you hope and saying, setting you free. तुम्हें बता रहा है मैं तुम्हें याद करेंगे And करके। He says that I will remember you. 2 वचन नंबर के प्रार्थना करेंगे आगे। ऐसाया का किताब में ऐसाया 41 वर्स 10, ऐसाया 41 वर्स 10 पढ़ेंगे। Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 41 verse 10. मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर तुमको अभी जो तुम बोलेंगे, मत डर, तुम डरा होंगे, तुम काफी टेंशन में होंगे, तुम बीमारी होंगे, तुम कुछ भी समस्या से बाहर आने के लिए तुम सोचते रहेंगे, ट्राई करते होंगे, लेकिन आज परमेश्वर तुम्हारे से जो बात कर रहा है, डर मत। बगल वाले को बोलो डरो मत। आमीन। Look at the person next to you and say, do not fear, fear not. या पढ़ो, कंटिन्यू करो। व्हाट इज Fear इट? not, for I am with मत you. डर, मत डर। क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर ये समझिए अपने संग है, He's with us. इधर उधर मत ताक, तुम इधर उधर मत ताक, Do not run around here and there. Do not be क्यों? तुम dismayed. कलिसिया छोड़ के इधर उधर। मत Do जा। not ignore the church and don't run around here and there. कोई बोलेंगे मेरा बेटा आजा चॉकलेट देते तो आपको उधर नहीं जाना है। Somebody is tempting you saying, I am giving you chocolate. Do not fall for such अपने traps. अपने बच्चे को अपने माता पिता चॉकलेट देता है, दूसरों को कोई बोलेंगे हाँ बेटा मैं तुमको चॉकलेट देता है, तो क्या करेगा? अपने बच्चे को उठा के लेके जाएगा। And we see that parents also, they offer children their some chocolates or sweets, but when strangers offer, the children go there and they are carried away. आज बहुत जन बच्चों को उठा के लेके जाके कुछ भी हाथ निकालता है, कुछ भी हाथ काटता है, मतलब उसको भिखारी मतलब पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ करता And many है। people, they kidnap children like this. They cut off their body parts and they make them beg. बहुत जन छोटी छोटी बेबी को बच्चों को लेके जाके गलत करता है। And they do a lot of wrongdoing.
इसलिए हमें कह देना है। So we have to be careful. इसके लिए वो पता है कलीसिया नहीं छोड़ना है। Do not leave the church. आमीन आमीन। Ignore the church. Amen. कलीसिया में परमेश्वर तुम्हारे से जो बात करता है हमें से याद रखना है। And remember the word that God speaks to you through the church. परमेश्वर तुम्हारे लिए जीवन दिया। परमेश्वर आज बता रहा है तुम डर मत और किसी का पद इधर उधर बका मत। जो क्या बता रहा है? He says that do not fear and do not be dismayed or run around here and there. मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर तुमको दृढ़ करेंगे, मतलब कि तुमको नॉलेज देंगे, तुमको विजडम देंगे, तुमको बुद्धि देंगे। He'll give you the wisdom, the knowledge and understanding you need to be strengthened. ये संसार में कैसा जीना है? How to live in this world. आप सोचेंगे हम बहुत बड़ा लिखा है, बुद्धिमान है, लेकिन मेरे प्रियो अपनी बुद्धि कुछ भी नहीं चलेंगे। My beloved, you might say I'm well educated, I have the knowledge that I need, but that is not in any comparison to God's लेकिन word. परमेश्वर जी कहते हैं वो हमें संभालेंगे, वो सहायता करेंगे, वो बुद्धि देंगे। But God is saying that He will give us that strength, the wisdom and knowledge that we need. और तुम्हें मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। I will help you. अपने धर्मी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। आमीन आमीन। तुम आज बोलो परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से मुझे संभालेंगे। Come on, say it. God will uphold me with the righteousness, righteous right hand. नो मैं नहीं सुना, फिर परमेश्वर कैसे सुनेंगे? Come on, say it loudly. बोलो जोर से कि कम ऑन, जोर से बोलो। कम ऑन। प्रभु मुझे अपने दाहिना हाथ से संभालेगा। Come on. प्रभु मुझे अपने दाहिने हाथ से संभालेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रभु की धन्यवाद है कि प्रभु आज से तुम्हारे जीवन में नया कार्य करने वाला है। Amen. Even from today, this day forward, God is going to do a new work in your life. तो उसके लिए हमें भाग्यवान बनाना है। And He has made us blessed people for that. परमेश्वर का वचन सुनना है। Listen to the word of God. परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है, परमेश्वर प्रेम करना है। Obey the word of God and love the Lord Jesus God bless Christ. you. प्रभु आप सबको आशीष करें। हालेलुया। आइए ताली बजाकर यीशु का धन्यवाद करेंगे। जो भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े उनका भी हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अलोंग ऑनलाइन। May the Lord bless you all. You can follow us on our Facebook page, The Heart of Christ Church, and our YouTube channel, The Heart of Christ Ministries. May the Lord continually bless you. Thank you.